Hello friends, welcome to RCI's Navshikhar channel. The topic of today's discussion is planning and management of special education hearing impaired. And for this topic, we have Dr. Gayatri Ahuja with us. She has vast knowledge and experience in the field of special education. She is lecturer at AYJ NIHHRC, New Delhi. Welcome, ma'am. Hello. I would like to say to our viewers that if you have any queries or suggestion regarding this topic, you can call us on our toll-free number, that is 1-800-112-008. Our landline number is 265-11611. You can fax us at 265-11609, and you can email us at rehabstd@ndc.vsnl.net.in. And for more information, you can log on to our website, that is www.rehabcouncil.nic.in. So friends, हम आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं. मैम, जब हम बात करते हैं प्लानिंग की और स्पेशल एजुकेशन की, सो व्हाट आर द इश्यूज वी कैन फेस? Okay, in special education, there are basically 5 issues which we look into it. There are following issues which we need to think about it when we are planning a special education. The first thing is subject consideration. कि हम किसके लिए स्पेशल एजुकेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, सेरिब्रल पैल्सी के हैं, कौन से बच्चों के लिए आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सेकेंड इज करिकुलम कंसिडरेशन. what type of instruction or learning experiences are to be given through special education. जो learning experience है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा. For example, hearing impaired बच्चों के लिए अलग, deaf blind बच्चों के लिए अलग, MR बच्चों के लिए अलग, because उनके needs अलग अलग होते हैं. Third, a very important thing is the methodology consideration. How should special education be imparted? Like आप किस तरीके से special education आप दोगे. For example, अगर एक बच्चा hearing impaired बच्चा है तो आप ज़्यादातर ध्यान देते हो उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए. तो आप कौन से टेक्निक से या कौन से मेथड से आप उनका लैंग्वेज डेवलप करोगे. नेक्स्ट इज प्लेसमेंट कंसिडरेशन. वेयर शुड द चिल्ड्रन बी प्लेस्ड फॉर रिसीविंग स्पेशल एजुकेशन. क्या आपका बच्चा स्पेशल स्कूल में है, इंटीग्रेटेड सेटअप में है, इंक्लूसिव सेटअप में है, SSA में है, कहाँ पर है बच्चा. बिकॉज दैट विल डिसाइड योर मेथडोलॉजी and your other things like curriculum and subject. Then the human resource considerations, like who is going to impart the special education to the children. Like special educators हैं, resource teachers हैं, audiologist है, speech therapist है, physiotherapist है, OT है. कौन कौन से resources आपको चाहिए रहेंगे जो impart करेंगे special education इन बच्चों को. तो ये जो main है 5 चीज़ें, इन सब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको प्लानिंग करना होगा. मैम, जब हम बात करते हैं फुल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सो ये सारी टर्म्स आर very common nowadays. So what are these terms? Like if we see our PWD Act also, उसमें भी उल्लेख है equal opportunities, full participation and protection of rights. If we see our UNCRPD also, that also talks about all these things. These are all the legal issues which are considered while framing up a disability related legislation. So we look into all these things in detail. The first thing what we have talked about is equal opportunities. Now, what exactly is equal opportunity? It is a process through which general system of society are made accessible to all. जो एरियाज़ हैं सोसाइटी में, आप एजुकेशन की बात करें, रिक्रिएशनल की बात करें, इंजॉयमेंट की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये जो भी एरियाज़ हैं या पार्ट्स हैं सोसाइटी में, ये सारे जो पार्ट्स हैं दैट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी. वो उनके पहुंच तक होने चाहिए. इट शुड बी रीचेबल टू देम. Next thing is individuals with and without impairment are expected to be provided equal opportunities. Nobody is expected to be deprived of education, employment or any other aspect of life. जैसे मैंने पहले कहा, जो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, रिक्रिएशन है, जो भी एरियाज हैं आपके सोसाइटी में, एवरीथिंग शुड बी रीचेबल टू देम इंक्लूडिंग persons with disabilities. Next, disability is a social construction, and that if all the persons are given equal and fair opportunities, every individual, regardless of their physical state, can play a meaningful role in the society. अगर आप हर disability व्यक्ति को, regardless of whatever disability they come from, hearing impairment, mental retardation, autistic, cerebral palsy or anything, अगर आप उनको equal opportunities दें, full participation करें, उनके protection of rights करें, तो वो हर व्यक्ति एक meaningful role play कर सकता है society में. Next thing, what we have already spoken, you have spoken about it, the protection of rights.
जो जो राइट्स का उल्लेख है डिसेबिलिटी लॉ में, वो सारे राइट्स का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक नोबडी कैन डिनाई एडमिशन. कोई मेरे स्पेशल बच्चे को आप डिनाई नहीं कर सकते हो एडमिशन इन रेगुलर स्कूल, बिकॉज दैट इज़ देयर राइट. ओके, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट. आप डिनाई तब करोगे जब वो लॉ में उल्लेख नहीं है, पर अगर उस लॉ कहता है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो कोई भी प्रिंसिपल रेगुलर स्कूल का डिनाई नहीं कर सकता है एडमिशन के लिए. नेक्स्ट, persons with disabilities are excluded from places and activities and most of us take them for granted. Usually क्या होता है कि हाँ बाबा ये हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति है या ये एमआर व्यक्ति है तो ये चीज़ें नहीं कर सकता है. तो इट इज़ लाइक अ मिसकंसेप्शन, या आप पहले से ही सोच के रखते हो हाँ ये चीज़ें वो नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है अगर वो चीज़ें उनके तरफ एक्सेसिबल हो या रीचेबल हो. नेक्स्ट, द की पॉइंट इज दैट communities, individuals, organizational, family and system levels have an important role in determining the processes and goals and degree of participation necessary to meet them. It is important that the community has sufficient awareness of the situation of persons with disabilities. जो community है उन पे एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये प्रकार के डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके नीड्स ये होते हैं और इस प्रकार से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. तब जाकर हम एक सही तरीके से रिहैबिलिटेशन या हैबिलिटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं सोसाइटी में. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज बैरियर फ्री एनवायरनमेंट. इसको हम लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट भी कहते हैं. यूएस में यूजुअली हम लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट. There are basically different types of barriers: physical barriers, social barriers or attitude barriers. Okay. Now, our infrastructure and systems are expected to accommodate citizens with diverse abilities. For example, अगर कोई ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड हो, जो व्हील चेयर में उसको व्हील चेयर की आवश्यकता हो, और अगर आपको उसको आपके बिल्डिंग में आना हो, अगर आपके पास लिफ्ट नहीं है या आपके पास रैंप नहीं है, तो वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक नहीं जा सकता है, बिकॉज दैट इज़ अ बैरियर टू हिम. ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति, अगर आपको एक्सेसिबिलिटी लानी है तो रैंप होना चाहिए या लिफ्ट होना चाहिए. नेक्स्ट, इट इज़ देयर इनहेरेंट राइट टू हैव एक्सेस टू अ मेन स्ट्रीम एजुकेशन. जैसे मैंने पहले कहा कि इंटीग्रेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन वो उनका हक है, दैट इज़ देयर राइट. No declaration of rights in itself can bring about change if the school system is not made barrier free. लाइक व्हाट एग्जाम्पल आई गेव इट टू यू, कि अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर में है और उसको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जाना है और आपके पास स्टेयर्स हैं, तो ही कैन नॉट गो अप टू फर्स्ट और सेकंड फ्लोर इफ़ यू डोंट हैव अ रैम्प और इफ़ यू डोंट हैव अ लिफ्ट. ओके, तो एवरीथिंग नीड टू बी रीचेबल, एक्सेसिबल, उनके पहुंच तक होना चाहिए. और ये सारे बैरियर्स भी निकालने चाहिए या रिड्यूस करने चाहिए या रिमूव करने चाहिए. और जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा जो बैरियर होता है दैट इज़ देयर एटीट्यूड. ओके, अगर हमारे एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, और अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, इफ़ वी हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड, और अगर हम कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या फुल पार्टिसिपेशन या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, एंड नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट. ओके, तो आवर मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. Equal opportunities and protection of rights is possible only when barriers in education are weakened if not removed. जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स या एटीट्यूडनल बैरियर्स, इन बैरियर्स का निकलना, रिमूव करना, रिड्यूस करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तब जाकर हम बोल सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं या फुल पार्टिसिपेशन है. नेक्स्ट इज इंक्लूसिव कम्युनिटी. फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कम्युनिटी. कम्युनिटी इज एन इकोनॉमिक, सोशल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर made up of a varied multitude of individuals. Inclusive community is the community where this ethnic diversity is respected and protected. Like persons with disabilities need to be respected, they need to have a dignity and they need to have a dignified life, and they need to be protected. Inclusive society is expected to nurture, develop and use skills and talents and strength of all its members including the disabled. हर व्यक्ति में जैसे कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होते हैं, तो जैसे डिसेबल व्यक्ति के भी कुछ वीकनेसेस होते हैं. वी नीड टू नर्चर एंड डेवलप देयर स्किल्स. ओके, जो उनको नहीं आता है उस स्किल्स को हमें डेवलप करना है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति है तो हम उसको हियरिंग एड देते हैं. अगर हियरिंग एड से उसको फ़ायदा होता है तो फाइन,
अगर समझो हमें लगता है कि हाँ उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वी स्टार्ट विथ द साइन लैंग्वेज, ओके, कि वो किस तरीके से भी समाज में वो एक इंक्लूसिव मेंबर बन सके, एक मीनिंगफुल मेंबर बन सके, ठीक है। अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप्ड होंगे तब जाके वो समाज का एक अच्छा एक हिस्सा बन पाएगा। अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स ही डेवलप नहीं है तो वो समाज का हिस्सा कैसे बनेगा, ओके। Now, an intervention in community development, teacher training and public awareness programs will bring in a dramatic change in attitudes of all the members of community. जैसे मैंने पहले कहा, जो सबसे बड़ा बैरियर है दैट इज एटीट्यूड। तो इस नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए। और टीचर ट्रेनिंग के जो कोर्सेज हैं, बीएड जनरल बोलो या जो भी टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज चलते हैं, उसमें एक यूनिट डिसेबिलिटी का भी होना चाहिए, एंड इट इज़ इंक्लूडेड नाउअडेज। इफ़ यू सी अ बीएड करिकुलम, डिसेबिलिटी के लिए भी चैप्टर्स हैं और जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट, society will be fully inclusive of persons with disabilities when these barriers, जैसे मैंने कहा, physical, social, attitudinal barriers to their participation are weakened। हम पूरे के पूरे barriers remove तो नहीं कर सकते हैं, पर उसको कुछ समय तक या कुछ सिलसिले में weaken ज़रूर कर सकते हैं, कम से कम तो कर सकते हैं। Next important aspect is full participation। Next, now, participation of civil society has today become a common expression in developmental circles. Participation is seen as a part and parcel of the process of empowerment of the disadvantaged. Now, when we talk about, for example, if I want to have a sports of deaf, blind or a mental retardation and non-impaired people, okay, इन सब में अगर हमें रनिंग की कंपटीशन रखनी है तो डेफ कैन रन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। डेफ ब्लाइंड को कहाँ से कहाँ तक रन करना है वो उसे कैसे समझ में आएगा? तो यार यूजुअली व्हाट वी यूज टू डू इन हेलेन केलर इंस्टीट्यूट वाज लाइक कि वी यूज टू हैव अ रोप, यू नो, एक साइड एक टीचर खड़ा रहेगा और दूसरी साइड दूसरा टीचर, एंड वी यूज टू हैव अ रोप। द चाइल्ड विल टच द रोप एंड इट विल स्टार्ट रनिंग, ओके। तो उसको एक वो क्लू मिल जाता था कि मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक भागना है, ठीक है। तो देयर हम लोग जो पूरा मॉडिफाई करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये अडेप्टेशन, ये मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है, तो ही जाके जो हमारा एम है फुल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, वो पूरे हो सकते हैं। अगर हम ये मॉडिफिकेशन या ये बैरियर्स को हम वीकन नहीं करेंगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकते हैं। मैम टुडे वी यूज़ द टर्म हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो मैम ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली आजकल सोसाइटी में यूज़ हो रहे हैं, सो दीज आर द सेम थिंग्स और ये डिफरेंट हैं? Okay, now habilitation and rehabilitation both have a different meaning, okay। तो usually क्या होता है, हम बहुत बार casually या usually बोल देते हैं habilitation and rehabilitation, but technically both have a different meanings, conceptual wise they both are different, okay। When we teach anything for the first time, that is habilitation, and whenever you are doing a reteaching, okay, when कोई भी re-ablement, re-thing आता है, that becomes a rehabilitation। We'll see that thing in detail। First thing is habilitation। Now, as what I said, whenever you're teaching anything for the first time, that becomes an habilitation। Learning a new skill that you did not have before is again a habilitation। जो स्किल आपके पास पहले नहीं थी और आप वो चीज़ को पहली बार सीख रहे हैं, पहली बार लर्न कर रहे हैं, that is habilitation। It is a process of using various professional services to help disabled persons maximize their abilities। Habilitation program हो या rehabilitation program हो, हम अलग अलग प्रकार के professional services इस्तेमाल करते हैं, like speech therapy, auditory training, या अगर जिस व्यक्ति को चाहिए रहेगा OT, PT, तो ये सारे professional services हम इस्तेमाल करते हैं। Special educators, ये दोनों जगह लागू है, habilitation and rehabilitation, okay। But again what I said, habilitation मतलब it is learning anything for the first time। The term usually refers to the programming for those with developmental disabilities such as cerebral palsy, mental retardation, epilepsy। जो भी व्यक्ति को developmental disabilities होते हैं उन व्यक्तियों के लिए खासकर ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, that is habilitation। टेक्निकली हमें MR के लिए या CP के लिए habilitation शब्द का प्रयोग करना चाहिए। Now, present day habilitation programs have evolved from a decade of legislation and litigation addressing the rights and the needs of the developmentally disabled। The Centers for Habilitation provide habilitation programs for individuals with developmental and or physical disabilities।
The current programs focus not only on the vocation. Earlier what used to happen is हम लोग सिर्फ vocational development पे ध्यान देते थे, पर आजकल ऐसा नहीं है. आजकल हम सारे areas पे ध्यान देते हैं. उनके education को कहो या recreational कहो, enjoyment कहो, employment कहो, हर चीज़ हर area पे ध्यान देते हैं. उनके communication skills कहो. पर पहले क्या होता था? It was only through vocation. It is only through a lot of conventions which is coming up, amendments which is coming up. We are not only focusing on their vocational, but we are focusing on all the areas of development. The teaching procedures include identification of the handicap, assessment of skills, program design based on the needs, interest and the skills of the individual, instruction and behavior management and evaluation. जब भी आप evaluation करते हो बच्चों का तो उनके needs के हिसाब से आपको evaluate करना पड़ेगा, right? And every individual is different. हर बच्चे के needs अलग अलग होते हैं. Career education includes career awareness, exploration, development of vocational prerequisite and preparation training. Goals of these training programs vary with the individual skills and abilities. Now for a simple example, अगर कोई एक hearing impaired व्यक्ति है तो वो कौन कौन से कैरियर में या कौन कौन सा वोकेशन कर सकता है. ओके, दैट विल बी डिफरेंट विद अ डेफ ब्लाइंड व्यक्ति. ठीक है ना, डेफ ब्लाइंड व्यक्ति या एमआर व्यक्ति में वी हैव अ टास्क एनालिसिस. ठीक है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को हम कुछ कुछ टास्क दे सकते हैं जो हम एमआर और डेफ ब्लाइंड को नहीं दे सकते. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द लेवल ऑफ अ पर्सन एंड द नीड्स ऑफ अ पर्सन. ठीक है. Now, the term habilitation is usually defined as a process through which person born with a certain impairment are helped to channelize their residual capacities to their maximum development so that he or she could live as normal life as possible. Now, in simple terms, it is done to help a person born with impairment. It refers to the development of abilities that never existed or are too delayed. This is a long-term process. Now when we talk about rehabilitation, rehabilitation can be a long term or can be a short term, again depending upon क्या कारण है या what is the cause of the disability and what is a rehabilitation program. Now the persons with disabilities need to develop the basic skills of day-to-day life through a structured training program. It deals with the treatment and training. Next what we talk about is the rehabilitation. Next. Now in rehabilitation, it is reteaching someone to do something. इंसान के पास वो स्किल था, बस किसी कारणवश वो स्किल नहीं है, and when you are reteaching that person something, it becomes a rehabilitation. Okay. Now it means relearning a skill, for example walking or talking. Another word for rehabilitation is reablement. It connotes restoration of the abilities. It is a process aimed to enabling persons with disabilities to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychiatric and or social functional levels, thus providing them with the tools to change their lives towards a higher level of independence. The rehabilitation process does not involve initial medical care. It includes a wide range of measures and activities from more basic and general rehabilitation to goal-oriented activities, for instance, vocational rehabilitation. It refers to any process, procedure or a program that enables an individual with disability to function at a more independent and a personally satisfying level. This functioning should include all the aspects. जब आप rehabilitation की बात करते हो, it includes all the aspects: physical, mental, emotional, social, educational, vocational of the individual's life. Now, in a simple terms, what exactly is difference between habilitation and rehabilitation? Next. Now, what is rehabilitation and habilitation का अगर हम इसका difference देखें तो rehabilitation is to help a person with lost function, disability or impairment. In habilitation, it is to help a person born with impairment. अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही impaired हो, जन्म से ही disabled हो, तो उस व्यक्ति के लिए जो हम प्रोग्राम करते हैं that is habilitation. जैसे मैंने पहले कहा था, it is with the developmental disabilities. Okay. Rehabilitation is, it means restoring abilities, whereas habilitation is, it refers to the development of the abilities that never existed or are too delayed. जो skills पहले नहीं थे, it never existed or it was delayed, जो हम प्रोग्राम करते हैं that is habilitation. Okay. Now rehabilitation, जैसे मैंने पहले कहा, it can be long term or it can be a short term. Habilitation
इट इज़ नॉर्मली अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बिकॉज आप ज़ीरो से शुरुआत करते हो, आपको सारे स्किल्स आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। रिहैब में क्या होता है, वो बच्चों को कुछ वो चीज़ स्किल्स थे पर किसी कारणवश वो स्किल्स डिलीट हो गए हैं, वीकेंड हो गए हैं, तो आपको वो स्किल्स वापस सिखाने हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में क्या होता है, हैबिलिटेशन बिकम्स अ वेरी लॉन्ग टर्म एंड रिहैब बिकम्स लॉन्ग और अ शॉर्ट, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स टू बी डेवलप्ड. Rehabilitation. Persons with disabilities need to develop fundamental capabilities, knowledge, experience, and attitudes. Habilitation means persons with disabilities need to develop basic skills of day-to-day life through structured training program. Rehabilitation deals with enhancement of one's own environment, whereas habilitation deals with treatment and training. Rehabilitation is a very broad concept which also includes the habilitation. रिहैबिलिटेशन का एक पार्ट हैबिलिटेशन भी है. हैबिलिटेशन इज वेरी स्पेसिफिक कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डेवलप, विच स्किल यू वांट टू डेवलप. नाउ जब हम बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन की, और यूजुअली होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हैबिलिटेशन है कि रिहैबिलिटेशन है. बट मेंटल रिटार्डेशन अगर जो होता है अर्ली ईयर्स में शुरू होता है, तो टेक्निकली व्हाट वर्ड वी नीड टू यूज इज रिहैब और हैब. इट इज हैबिलिटेशन बिकॉज इट इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी और आप जीरो से शुरू कर रहे हो. इट इज एन अर्ली दिस थिंग, तो यू व्हाट वर्ड टेक्निकली यू नीड टू बी यूजिंग इज हैबिलिटेशन, ठीक है. मैम, इन दिस मॉडर्न एरा वी आर एक्सपेक्टिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो बनाया गया है. सो व्हाट इज दैट, वो हमें क्या बताता है? ओके, जो UNCRPD की जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. अगर हम देखें तो हर देश के अलग अलग कानून हैं. ओके, हर देश में खुद के भी कानून हैं. जैसे हमारे हिंदुस्तान में वी हैव RCI एक्ट, वी हैव PWD एक्ट, वी हैव नेशनल ट्रस्ट एक्ट, वी हैव नेशनल पॉलिसी. ये सारे कानून होने के बावजूद हम देखें तो बहुत सारे राइट्स से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ वंचित हैं. उनके जो भी हक हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं. तो इस वजह से UNCRPD आया. ओके, इट वाज अ कन्वेंशन वेयर अराउंड मेनी पीपल केम टुगेदर विद द सेम इंटरेस्ट. ओके, एंड दे सैट टुगेदर एंड हर देश के कुछ प्रतिनिधि आए. देयर वर सम पीपल कमिंग फ्रॉम ईच कंट्री. दे सैट टुगेदर एंड डिसाइडेड कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ओके, एंड दैट विल सी इन डिटेल. ओके, नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. Next. Okay, before going to UNCRPD, we need to know what is law, what is legislation, what is convention, and what is a bill. Okay, now bill क्या है? It is a draft or it is a proposal, okay, which is formally tabled and it is kept before a legislative assembly. What is a convention? Convention का मतलब होता है there is a लार्ज फॉर्मल असेंबली. एक असेंबली होती है जहाँ पे अलग अलग देश के प्रतिनिधि आते हैं. ग्रुप होता है जो कॉमन इंटरेस्ट के लोग होते हैं, वो साथ में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है. देन व्हाट इज अ लेजिस्लेशन? जो लॉ है, जब वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने इनैक्ट होता है, दैट बिकम्स अ लेजिस्लेशन. देन व्हाट इज अ लॉ? देन law is a legal document setting forth the rules and regulations governing a particular kind of an activity. Like in our country we have got different legislations. Okay, पहले एक ड्राफ्ट बनता है, एक बिल बनता है, which is put forth in the sabha, and when it is actually signed, which is everybody approves, that becomes a legislative or that becomes an act. Okay, now जो UNCRPD है उसका प्रोटोकॉल आया था 13 दिसंबर 2006 में इन न्यूयॉर्क. और इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे देश के प्रतिनिधि आए थे. इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 30 मार्च 2007. इंडिया ने UNCRPD पे साइन किया था 30 मार्च 2007 में और रेटिफाई किया था 1 अक्टूबर 2007 में. India ratified on 1 October 2007 as what I said, and India was the 7th country and the first signatory country. There were around 82 signatories to the convention. ये पहला ऐसा कन्वेंशन जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्नेटरीज हैं. It came into force on 3rd May 2008. Now, जैसे मैंने पहले कहा कि हर देश में अलग अलग कानून हैं. जैसे हमारे देश में कानून है PWD एक्ट, RCI, नेशनल ट्रस्ट एक्ट. तो ये UNCRPD क्यों, आपको UNCRPD की क्यों आवश्यकता हुई? तो जैसे कि a response to an overlooked development challenge,
10% of the world population are persons with disabilities, that is approximately 650 million persons, approximately 80% of whom live in the developing countries. A response to the fact that although pre-existing human rights conventions offer a considerable potential to promote and protect the rights of persons with disability, this potential was not being tapped. जो उनके राइट्स थे वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पा रहे थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी उन राइट्स को हासिल करने के लिए, इस वजह से ये कन्वेंशन आया. नाउ persons with disabilities continued being denied their human rights and were kept on the margins of society in all the parts of the world. Okay. Now, this convention sets out a legal obligations on states to promote and protect the rights of persons with disabilities. It does not create a new law. सो फ्रेंड्स वी हैव सीन कि जब बात आती है स्पेशल एजुकेशन की, सो देर आर मैनी टाइप ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग टुडे. वो चैलेंजेस आपके सब्जेक्ट मैटर को लेकर हो सकते हैं, बच्चे की प्लेसमेंट को लेकर हो सकते हैं, मेथोडोलॉजी को लेकर हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स को लेकर हो सकते हैं. उसके बाद हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की, सो ये सब क्या है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक ऑल द थिंग्स, ऑल द फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल पीपल. जितने भी सोसाइटी में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं या फिर पर्सन विद नॉन डिसेबल जो भी लोग हैं, उनके लिए हर एक चीज़ को हम किस तरह से एक्सेसिबल बनाते हैं, हम उसमें कितने अपने एफर्ट्स डालते हैं कि जो भी चीज़ सोसाइटी में है वो सब लोग जो हैं वो यूज़ कर पाएँ. उसके बाद इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सो जो भी राइट्स हैं, जो भी लॉज हैं, उनके इंक्लूडिंग जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो भी राइट्स सामने आए हैं, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो सब प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में आता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव सोसाइटी, सो एन इंक्लूसिव सोसाइटी इज़ द सोसाइटी जिसमें एथिकल कंसिडरेशन होता है, जिसमें for person with disability and equal opportunities and protection of rights, जो इन सबको complete करती है, वो सोसाइटी होती है हमारी इंक्लूसिव सोसाइटी. उसके बाद हमने देखा कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या होता है. बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का ये मतलब है कि वहाँ पे एटीट्यूडनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स और जो भी सोशल बैरियर्स हैं वो सब एलिमिनेट कर दिए जाएं और सब इक्वल राइट्स शेयर करें. उसके बाद फ्रेंड्स हमने बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि यूनिवर्सली अप्रूव्ड डिज़ाइन शुड बी देयर, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी शुड बी देयर, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो टॉक्ड अबाउट रिहैबिलिटेशन एज वेल एज हैबिलिटेशन प्रोसेस. हैबिलिटेशन की अगर हम बात करते हैं, इफ़ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी है, ऑटिज़म है, सो इन सब में हमको स्टार्टिंग से जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है. सो ये सब हमारा हैबिलिटेशन प्रोग्राम में आता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट रिहैबिलिटेशन, सो जो भी रेजिडुअल कैपेसिटी है ऑफ अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, उसको यूज़ करते हुए कैसे हमको उसके प्रीवियस फंक्शन को रीस्टोर करना है, ये सब रिहैबिलिटेशन में आता है. एंड फ्रेंड्स, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद disability. So we will continue with that also. We will be right back after a short break.
पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly. कमर से मिला दे हम उड़ सकते हैं उड़कर दिखा दे हम छू ले सितारों को We can touch the sky आशा के पंखों पे We can and we will fly. We can and we will fly. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट प्लानिंग एंड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो फ्रेंड्स, ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि हाउ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़। मैम, अब हम जानना चाहते हैं जब इस कन्वेंशन की बात आती है तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है? Okay, now if we see the UNCRPD जो structure है, it includes everything. It talks about habilitation, it talks about rehabilitation, it talks about all the rights ranging from civil rights, political rights, legal rights, right to non-discrimination, right to equality. It has included all the rights. It also talks about the children with disabilities. It talks about the disability में कौन कौन से criteria होना चाहिए और कौन कौन से categories हैं. It includes everything in totality. Like अगर हम देखें तो पूरे convention structure में there are 50 articles, which is the convention structure. वैसे मैंने कहा कि there are 50 articles हैं. The article 1, that is purpose, definition. Then we have 3 and 4, which talks about the general principles and general obligation. Article 5 है, that is talking about the equality and non-discrimination. 6 and 7, which talks about the women and children with disabilities. 8th, which is talking about the awareness raising. 9th, accessibility. Then there are different rights, right to life or equal recognition before the law. 13, which is talking about the access to the justice. 14th, which is talking about the liberty and security of the person.
15th, which talks about the freedom from torture or cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment. 16th talks about the freedom from exploitation, violence, and abuse. 17th talks about the protecting the integrity of a person. 19th talks about living independently and being included in the community. Next, 20th to 50th if we see, it talks about the personal mobility, to the respect for privacy, home, and the family. 24, which is very important for us because it talks about the education. 26, habilitation and rehabilitation. It also talks about the participation in the political and public life. 30th talks about the participation in cultural life, recreation, leisure, and sports. 32, which talks about the international cooperation. 34 to 40, which talks about the international monitoring and mechanism. Okay. मैम UNCRPD की जब भी बात आती है सो एवरी कन्वेंशन हैज़ अ पर्पस सो Yeah. UNCRPD का क्या पर्पस? Like UNCRPD का जो purpose है, if we see, it talks about promote, protect, and ensure the full and equal enjoyment of all the human rights. When we talk about the human rights, there are basically three things we need to consider. That is respect, protect, and fulfill. जो भी laws हैं, discrimination के जो laws हैं, okay, it need to be modified. Abolish कर सके तो abolish, या उसमें modification की आवश्यकताएं हैं. फुलफिल का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एक्टिविटीज़ करें, जो भी एड्स एंड अप्लायंसेस हर व्यक्ति के लिए, लाइक हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए अलग, एमआर के लिए अलग, सीपी के लिए अलग, ऑटिज्म के लिए अलग, जो भी एड्स एंड अप्लायंसेस ज़रूरत हैं उनके लिए वो चीज़ उनकी रीचेबल या एक्सेसिबल होने चाहिए, और वो एड्स एंड अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्कीम्स एंड कंसेशंस करें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट UNCRPD टॉक्स अबाउट इज़ to promote respect for their inherent dignity. It talks about their respect thing. Okay, so what the purpose of convention is? To promote, protect, and ensure the full and equal enjoyment of all the human rights and a fundamental freedom by all the persons with disabilities, and to promote the respect for their inherent dignity. Now, earlier what used to happen is like persons with disabilities were viewed as an objects or a charity or a medical treatment. Okay, now that was the earlier concept. Now persons with disabilities is no longer is an object to be fixed through medical treatment, but a subject with choices as to how he or she wants to live in. Like उनको अलग अलग choices देने चाहिए. For a simple example, I had conducted a research 2-3 years back, जहाँ पे मैंने सेकेंडरी हियरिंग इम्पेयरमेंट को पूछा था कि क्या तुमको इंक्लूसिव सेटअप में जाना पसंद करेंगे या स्पेशल स्कूल में जाना पसंद करेंगे. ठीक है, तो इट वॉज अराउंड 120 बच्चों को मैंने पूछा था. अराउंड 80% ऑफ देम सेड कि नहीं, दे आर हैप्पी इन स्पेशल एजुकेशन. ओके, दिस इज़ चॉइस. बट क्या होता है हमारे केस में, हमें ऐसा लगता है कि हाँ इस बच्चे को हमें इंक्लूसिव सेटअप में डालना चाहिए तो हम डाल देते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हाँ इस बच्चे को स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए तो हाँ पापा डाल दो. बट क्या हम बच्चों को पूछते हैं, क्या हम बच्चों को चॉइस देते हैं? वी आर नॉट आस्किंग द चिल्ड्रन. ओके, तो दे शुड बी ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, और उनको चॉइस भी देना ज़रूरी है. ओके, नाउ paradigm shift. The convention marks a paradigm shift in the attitudes and the approaches to persons with disabilities. Persons with disabilities are not viewed as objects of charity, medical treatment, and social protection, rather as subjects with rights. Like what I said, they have their own rights, who are capable of claiming those rights and making decisions for their lives based on their free and informed consent, as well as being active members of society. The convention gives universal recognition to the dignity of persons with disabilities. Like earlier, it was like we used to treat them as an object or a thing. Okay, but now it is like we are taking them as a members of the society, and they are part of that inclusive society. Okay. Now, okay. मैम ये जो भी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो है, इसमें अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है? अगर हम देखें तो पूरे कन्वेंशन में डेफिनेशन, जो आर्टिकल 2 जो डेफिनेशंस है उसके अंदर डिसेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है. ओके, द डिसेबिलिटी डेफिनेशन जो है वो पर्पस में दिया गया है. ओके, इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन, बट दे हैव एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज डिसेबिलिटी. नाउ विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज डिसेबिलिटी. The convention does not explicitly define disability.
The preamble of convention states that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between the persons with impairment and the attitudinal and the environmental barriers that hinders the full and effective participation in society on an equal basis with others. The convention also states that the persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual, or a sensory impairment which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. Like for example, if I have a disability, fine, and I have a disability like I cannot see, okay, I have a visual impairment, okay, and I've got a very high number if we see this, and you tell me to give an exam or you tell me to read this question paper, I cannot read it, okay, until unless you give me a glasses, if you have a corrective lenses, ठीक है. तो if you give me a corrective lenses then I can read it, that is not a barrier. अगर जो barriers है आप निकाल दो, ठीक है, तो I am not a disabled. Okay, if you are giving me a corrective lenses and I'm using a specs and I'm doing that activity, that means I'm not a disabled. But if you're not giving me a corrective lenses and you're telling me you read it or write a question paper or write a answer thing, that becomes a disability. Okay, because उसमें barriers आ रहे हैं. अगर ये barriers को हम निकाल दें तो वो disabled व्यक्ति disabled नहीं रहेगा, because आपने उसके needs के according सारी सुविधाएं दी है. Okay, next. Disability results from an interaction between a non-inclusive society and the individuals. Persons using a wheelchair might have difficulties gaining employment not because of the wheelchair but because there are environmental barriers such as inaccessible buses और staircase which impede access. ये मैंने पहले कहा था कि अगर कोई इंसान व्हीलचेयर यूज़ करता है और उसको कहीं जाना है तो आपको पास रैम्प होना चाहिए या तो आपके पास लिफ्ट होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई ऑलरेडी सेड वाज, अगर किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसके हाई नंबर है, तो इफ़ यू हैव अ करेक्टिव लेंसेज, इफ़ यू गिव अ करेक्टिव लेंसेज देन इट इज़ नो हिंड्रेंस, बैरियर नहीं है, तो वो इंसान वो जो कार्य है वो आराम से कर सकता है. ओके, नेक्स्ट what we will talk about is the definition of definitions जो आर्टिकल 2 में दिए गए हैं. अलग अलग definitions दिए हैं. फर्स्ट जो foremost है that is a communication which is very important for us. Communication includes language, display of text, braille, tactile communication, large print, accessible media as well as written, audio, plain language, human reader, and augmentative and alternative modes, means and formats of communication including accessible information and communication technology. Now if we see the definition of communication, और अगर हम एक डेफ ब्लाइंड बच्चों की तरफ देखें तो डेफ ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और या तो पाम पे लिखते हैं. ओके, तो अगर हम ये डेफिनेशन देखें और जो साइन लैंग्वेज देखें तो ऐसा लगता है कि साइन लैंग्वेज देन इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके, बिकॉज कम्युनिकेशन में वो चीज़ को उन्होंने इंक्लूड किया है. ज़्यादातर जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. तो वो सारी की सारी चीज़ें आ गई कम्युनिकेशन के डेफिनेशन में. दैट बिकम इट इज़ एन ऑफिशियल. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन. Now, when we see the definition of language, it includes spoken and sign language and other forms of non-spoken languages. Like what earlier only I said, that because of this definition of language, जो साइन लैंग्वेज है वो बन गया ऑफिशियल लैंग्वेज. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी मीन्स any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect or impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise on an equal basis with others of all the human rights and fundamental freedoms in their political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination including denial of a reasonable accommodation. When we see these two definition of language and a discrimination, अगर समझो किसी को इंसान को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, दैट मीन्स वो उसका जो राइट है वो उसको नहीं मिल पा रहा है. डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑन एनी बेसिस. ओके, जैसे आप नॉर्मल हो, आप एबनॉर्मल हो, आप ये हो, आप वो हो, उससे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन समझो आपको मूवी देखने का, आपको मूवी देखनी है, ठीक है, आपको सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखनी है. आप जब सिनेमा हॉल जाते हो देयर इज़ नो रैम्प. ओके, तो हाउ अ व्हील चेयर वाला इंसान नहीं जा सकता मूवी हॉल में, ठीक है. पर अगर उस सिनेमा हॉल में उसके लिए उसके नीड्स के अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें हैं तो वो सिनेमा देख सकता है, ठीक है. तो आपने उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया.
अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज लैंग्वेज की अगर हम डेफिनेशन देखें, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन लैंग्वेज बन जाता है एक ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो डेफ ब्लाइंड व्यक्ति हैं, इवन जो डेफ व्यक्ति हैं, वो साइन लैंग्वेज के द्वारा ही कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरों के साथ. Next, what is important is reasonable accommodation. Reasonable accommodation means necessary and appropriate modification and adjustment, not imposing disproportionate or undue burden where needed in a particular case to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all the human rights and fundamental freedoms. Now when we see this reasonable accommodation, इसका मतलब क्या होता है कि हर जगह मॉडिफिकेशन करना, एडजस्टमेंट करना, अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डेफ ब्लाइंड बच्चे को देखें तो डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए हम एक टेक्टाइल ऑब्जेक्ट रखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर उसको ऑडियो रूम में जाना है, ऑडियोलॉजी लैब में जाना है या रूम में जाना है, तो उस रूम के बाहर एक कुछ ऑब्जेक्ट होगा, टेक्टाइल होगा, जिसके द्वारा या तो जो ऑब्जेक्ट होगा या तो एक हेडफोन होगा या समथिंग रिसेम्बलिंग टू दी ऑडियोलॉजी रूम. तो जब उसको वो छुएगा, जब उसको टच करेगा, ही विल अंडरस्टैंड ओके दिस रूम इज़ एन ऑडियो रूम. ओके, अगर कंप्यूटर रूम पे जाना होगा तो बाहर उसके दरवाजे के बाहर एक माउस रखोगे या सम थिंग which is resembling the computer room. Okay, this is all modification you have to do so that the person is reachable or accessibility उसके पहुंच तक होनी चाहिए वो सारी चीज़ें. Next, now the article 3 which talks about the general principles, like it is talking about the non-discrimination, it is talking about the respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of the person. It also talks about full and effective participation and inclusion in the society. Respect for difference and acceptance of persons with disability as part of a human diversity and humanity. Equality of opportunity, accessibility, equality between men and women, respect for the evolving capacities of children with disabilities, and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities. Now, जैसे हमने शुरुआत किया था, and we were talking about equal opportunities, full participation, protection of rights and inclusive community. And when we see this article 3 of general principles, you see all these things are included in the general principles, right? When we talk about inclusive community, again that has been included in the general principles. Now, the next general principle is participation and inclusion. Like already what I have told you is जो इन हर व्यक्ति को इंक्लूसिव कम्युनिटी में रहने का अधिकार होना चाहिए और उसको फुल पार्टिसिपेशन का अधिकार होना चाहिए. Now, participation is important to correctly identify the specific needs and to empower the individual. Now, a full and effective participation and inclusion in society is recognized in the convention as a general principle. जैसे मैंने पहले कहा था article 3 में, it is an obligation, it is in article number 4 and it is a right in article 29 and 30. तो जो हम पहले terms का इस्तेमाल कर रहे थे, equal opportunities, full participation, protection of rights and inclusive community, तो ये सारी चीज़ों का भी convention ने उल्लेख किया है. पार्टिसिपेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बैरियर्स को आपने वीकन कर दिया, पर क्या आपकी सोसाइटी, क्या आपका कम्युनिटी इंक्लूसिव है? क्वेश्चन मार्क. ओके, तो जो आपकी सोसाइटी है, इट नीड टू बी हैव अ इंक्लूसिव सेटअप. आपके जो आपके बैरियर्स हैं उनको वीकन करना ज़रूरी है, जो आपके एटीट्यूड्स हैं उनको पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, एंड एक एक्सेप्टेबिलिटी आना ज़रूरी है. ओके, कि डिसेबल्ड व्यक्ति है, फाइन, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी. ओके, now like non-discrimination which is again a general principle. Non-discrimination, it is a fundamental principle of international human rights law. It includes direct and indirect discrimination. Reasonable accommodation must be made for the persons with disability. It hasn't really been defined as what exactly is reasonable accommodation. It is a necessary and appropriate modification and adjustments, not imposing a disproportionate or undue burden where needed in a particular case to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all the human rights and the fundamental freedoms. Now, the discrimination can be of two types. It can be direct discrimination or an indirect discrimination.
विच मीन्स वॉट कि जो भी आपके देश के जो लॉज हैं उसमें क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए कि ओके पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। एक डिसेबल्ड व्यक्ति को जैसे एक रेगुलर स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, उसको आप डिस्क्रिमिनेट ना करें जस्ट बिकॉज वो स्पेशल है, उसको जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकता, इस प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। और अगेन अगर वो उसका राइट है तो वो उसको मिलना ही मिलना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, देयर सर्टेन राइट्स एक डिसेबल्ड व्यक्ति या हमको भी मिलने चाहिए, दैट इज सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी, लीगल राइट्स, ओके। तो ये सारे राइट्स जो है वो डिसेबल्ड व्यक्ति को भी मिलने चाहिए और उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो लाइक यू, ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, तो जो हमारे राइट्स हैं वो भी उनके भी राइट्स हैं और उनको मिलने चाहिए, okay। Next what is talking about is general principle accessibility. It is important as a means to empowerment and inclusion. Now article 9, which talks about both as a general principle and a stand-alone article, access must be ensured to justice, living independently and being included in the community, information and communication services, education, health, habilitation and rehabilitation, work and employment, human resource policies and practices, adequate standard of living and social protection, participation in political and social life, participation in cultural life, recreation, leisure and sports. Like जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक्सेसिबिलिटी व्हेन यू टॉक अबाउट कोई प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ओके। अभी एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है या डेफ बच्चा है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया, ओके। द पुलिस इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डेफ पर्सन और उसका कोर्ट में केस है, तो यूजुअली व्हाट हैपन्स इज देयर इज़ एन इंटरप्रेटर, ओके, बिकॉज जो वो बोलना चाहता है वो साइन लैंग्वेज के द्वारा इंटरप्रेटर को कहता है और इंटरप्रेटर फिर वो जज को कहता है या लॉयर को कहता है, तो इट बिकम्स एक्सेसिबल, इट बिकम्स रीचेबल, ठीक है। नाउ अगर किसी डेफ व्यक्ति को जाके मूवी देखना है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि आप मूवी नहीं देख सकते बिकॉज आप सुन नहीं सकते, ओके। अगर उसको किसी अपंग व्यक्ति से ही शादी करनी है तो अगेन आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि यू कैन नॉट मैरी और यू कैन नॉट डू सर्टन थिंग्स विच इज़ नॉट राइट और नॉट रॉन्ग, ओके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इट नीड टू बी एक्सेसिबल। जैसे अगर उसको जाके अपना हियरिंग की जांच करनी है, वो रहता है कोई गांव में, ठीक है, और उस गांव में उसके ऊपर उसको कोई सुविधाएं नहीं दी हैं, उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा हियरिंग असेसमेंट के लिए, विच इज़ नॉट एक्सेसिबल एट ऑल, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो हैं जो उसके नीड्स के अकॉर्डिंगली है, उसको जो मिलना चाहिए दैट शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी इन द रीचेबल, ठीक है। नेक्स्ट, now article 7, which is very important for us, which is talking about the children with disabilities. It measures to ensure the full enjoyment of all the human rights and fundamental freedoms on equal basis with other children. Now, the best interest of the child shall be a primary consideration. Right to express their views freely on all the matters affecting them, their views being given due weight in accordance with their age and maturity, on an equal basis with other children, and to be provided with disability and age-appropriate assistance to realize that. Now, when we talk about children with disabilities, we need to know that it should be free and compulsory education, okay? बच्चों को एजुकेशन के लिए डिनाई नहीं करना चाहिए। लाइक वी हैव राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑल्सो, यू कैन नॉट से नो टू अ चाइल्ड फॉर एजुकेशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी एजुकेशन, इट शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. It should be free and compulsory education, and in the education process also we need to take the views of the children as to what are their views, whether they are happy, whether they are not happy, they need some modification or they need some assistance in it. सो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस करा UNCRPD के बारे में. इससे हमें पता चलता है ये हमें क्या बताता है. ये हमें बेसिकली बताता है कि फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको पूरा हक है कि वो एंजॉय करें अपने राइट्स को और वो पार्टिसिपेट करें कम्युनिटी में जैसे कि एक नॉन डिसेबल्ड मेंबर कर रहा है. उसके अलावा जो भी उनकी इनहेरेंट कैपेसिटीज़ हैं, जो भी उनकी डिग्निटी है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए. ये हमको लेके जाता है एक पैराडिम शिफ्ट की तरफ. उस पैराडिम शिफ्ट में हमने देखा कि किस तरह से थिंकिंग ऑफ द पीपल आर चेंजिंग फ्रॉम चैरिटी बेस्ड मॉडल टुवर्ड्स द राइट बेस्ड मॉडल एंड फ्रॉम सिंपैथी टुवर्ड्स द एम्पैथी.
उसके बाद मेडिकल मॉडल से सोशल मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही है अटेंशन। देन ये हमें बताता है, इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं बेसिकली ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हमको एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल द पीपल विद डिसेबिलिटी हमें इंक्रीज़ करनी है, किस तरह से हमें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हमको उनकी डिग्निटी को प्रिजर्व करके आगे बढ़ना है, और किस तरह से हमें उनका हेल्थ, उनकी एजुकेशन और उनकी जो भी लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो हमें उनको किस तरह से प्रिजर्व करना है, एंड ऑफ कोर्स किस तरह से हमको एक इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर्म करनी है। फ्रेंड्स, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में
और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड के बारे में। I would like to say to my viewers that if you have any suggestion regarding this topic, you can call us on our toll-free number, that is 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511611। हमारा फैक्स नंबर है 26511609। आप हमें ईमेल कर सकते हैं at rehabstd@ndc.vsnl.net.in पे। you can log on to our website also, that is www.rehabcouncil.nic.in। फ्रेंड्स, ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया अबाउट UNCRPT। हम देख रहे हैं कि उसके अलग अलग आर्टिकल्स हमको कितनी सारी चीज़ें बताते हैं। सो मैम, अगर हम एक और आर्टिकल की बात करें जो हमको बता रहा है अबाउट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में, सो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं? लाइक अभी जो हमने देखा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इट टॉक्स अबाउट द एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आता है 15 साल का बच्चा, ठीक है, जिसको कभी असेसमेंट नहीं किया गया, डायग्नोसिस नहीं किया गया, 15 साल में हमने उसको हियरिंग एड पहली बार दी है। ठीक है, अब 15 साल की उम्र में हम उसको 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि अगर वो उस स्टैंडर्ड में जाएगा तो कोई भी स्किल्स डेवलप्ड नहीं है, वो पहली बार उसको हमें एजुकेशन करना है। तो it has to be age appropriate. It means we are going to start the skills from pre-reading skills, pre-writing skills, pre-numerical skills. तो जो skills की आवश्यकता है हम 0 से शुरू करेंगे। उसके लिए चाहिए तो हम उसके लिए IPA प्लान करेंगे, एंड IEP प्लान करने के बाद थोड़ा बहुत लिटरेसी डेवलप करने के बाद, उसके बाद अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है सही तरीके से तो उसका हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे, नहीं तो विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी वोकेशनल। ठीक है, तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एज एप्रोप्रिएट एंड एज पर द लेवल ऑफ द चाइल्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है जो प्योरली डेफ है, 120 डेसिबल्स, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू एट ऑल, एंड 7 साल का है, आप उसको अच्छे से अच्छा हियरिंग एड दो, बट उसका स्पीच डेवलप नहीं हो रहा है। ओके, एंड यू आर टेलिंग कि नहीं स्पीच डेवलप होना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो वी नीड टू फोकस ऑन द साइन लैंग्वेज। ओके, तो वॉट एवर यू आर प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यू नीड टू कीप इन माइंड दैट it has to be as per the level of the child and it has to be age appropriate. Okay, आपको ऐसा लगा कि नहीं बाबा ये बच्चा बहुत बड़ा हो गया तो उसको बड़े क्लास में जाना चाहिए, नहीं, उसके कौन कौन से स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू प्लान आइदर IEP, या अगर आपको लगता है ग्रुपिंग फॉर इंस्ट्रक्शन करना चाहिए तो ग्रुपिंग फॉर इंस्ट्रक्शन करेंगे। And again, the second most important thing is free and compulsory primary education. You need to have a primary education जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए अगर मैं कहूँगी कि या तुम्हारा प्री स्कूल एजुकेशन जो है, जो तुम्हारा फाउंडेशन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बच्चा आगे जाके प्राइमरी या सेकेंडरी में सही तरीके से एजुकेशन डेवलपमेंट उसकी नहीं हो पाएगी, एंड देन अगेन द लिटरेसी इज़ अफेक्टेड, एजुकेशन इज़ अफेक्टेड। मैम, अगर हम इससे आगे बात करें और अगर हम देखें तो अवेयरनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसके बिना वी कांट प्रोसीड फर्दर। तो Exactly. UNCRPD में अवेयरनेस के रिगार्डिंग क्या क्या बातें बताई गई? Okay. In UNCRPD, if we see, there is Article 8 which talks about the awareness raising. We'll see that. Now, Article 8 which talks about the awareness raising, it talks about to raise awareness throughout the society, including at the family level, regarding the persons with disabilities, and to foster the respect for the rights and dignity of persons with disability.
If we see this Article 8 which talks about the awareness raising, that is, अगर हम इस आर्टिकल को पूरी तरीके से पढ़ें तो हमें ये लगेगा कि हाँ कि UNCRPD क्या कह रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो मीडिया वाले हैं, उन सबको इकट्ठे होकर एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कौन कौन से कारण के वजह से डिसेबिलिटी होती है और उसको हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, और हर डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अवेयरनेस सिर्फ हमें कम्युनिटी में तो करनी ही करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उस बच्चे से रिलेटेड है, फैमिली जो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें भी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट अ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ओके, नाउ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए जब आप एक स्पेशल स्कूल ढूंढते हैं, क्योंकि जब आप, जिसको हम मार्केटिंग भी कहते हैं, जब आप स्पेशल स्कूल ढूंढते हैं कि हाँ ये स्कूल अच्छा है या वो स्कूल अच्छा है, एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए हमें ये सोचना है कि बच्चे को हमें ओरलिज्म फिलोसफी वाले स्कूल में भेजना है, टोटल कम्युनिकेशन वाले में भेजना है, बायलिंगुअल में भेजना है। दैट विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द चाइल्ड, वो कौन से स्किल्स उसके डेवलप्ड हैं। जैसे अगर टोटल कम्युनिकेशन में जाएगा तो उसके साइनिंग सिस्टम डेवलप होंगे एंड स्पीच डेवलप होगा, बायलिंगुअलिज्म में जाएगा तो उसका साइन लैंग्वेज डेवलप होगा, ओरलिज्म में अगर जाएगा तो उसका स्पीच डेवलप होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड होने चाहिए। नहीं तो यूजुअली व्हाट हैपन्स, पेरेंट्स को पता चलता है कि हाँ बच्चा हियरिंग इम्पेयर है, उसको स्कूल भेज दो, पर आप कौन से स्कूल में भेज रहे हो, उस बच्चे का आगे क्या डेवलप हो रहा है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देन इसके अंदर जो आता है पब्लिक एंड प्राइवेट जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो मीडिया है, वो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि उन लोग की वजह से एक अवेयरनेस फैलेगी पूरे कम्युनिटी में। एंड जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स आर द मेन पीपल जो बच्चे से रिलेटेड हैं, जो बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं, उनमें भी एक अवेयरनेस फैलाएं। ओके, Article 12, which talks about the equal recognition before the law, that is talking about they enjoy the legal capacity on an equal basis and provide support in exercising their legal capacity for appropriate and effective safeguards to prevent the abuse. जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस किसी डेफ बच्चे को कैच करती है ऑफ डूइंग एनी अब्यूज़ और एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, ओके, द child will not be able to communicate properly to police fellow because there is a communication problem, okay। अगर उस पुलिस वाले बंदे को अगर साइन लैंग्वेज आती है या साइन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तब जाके वो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो पाएगा, ओके। पर अगर उसको साइन लैंग्वेज नहीं आती है तो डेफ पर्सन इज सेइंग समथिंग एल्स, द पुलिस पर्सन इज थिंकिंग समथिंग एल्स, देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड द अफेक्टेड पर्सन इज अ डेफ पर्सन। शायद उसने वो क्राइम नहीं किया होगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेशन, ओके। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर का होना बहुत ज़रूरी है, उसको एक रिकग्निशन तब मिलेगी जब उसके पास एक इंटरप्रेटर होगा, ओके। नेक्स्ट, Article 21, which is talking about the freedom of expression and opinion and access to information. Emphasis on sign language to be recognized as an official language, impact on developing standardized sign language, but also opportunity and full right for sign language user to choose sign language as decided by a person. अगर हम देखें तो साइन लैंग्वेज, देयर इज़ अ अमेरिकन साइन लैंग्वेज, देयर इज़ अ ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, देयर इज़ अ इंडियन साइन लैंग्वेज, ओके। अगर हम आर्टिकल 2 भी जब देखते हैं, जो डेफिनेशन के बारे में बात करता है, जो लैंग्वेज की डेफिनेशन की बात करता है या कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात करता है, तो उन सारे डेफिनेशन में साइन लैंग्वेज का उल्लेख है, ओके। और ये साइन लैंग्वेज सिर्फ डेफ बच्चों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, ये साइन लैंग्वेज डेफ ब्लाइंड बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। और इस डेफिनेशन से क्या हो गया, या इस आर्टिकल नंबर 21 से क्या हुआ, इट बिकम्स एन ऑफिशियल थिंग, ओके। तो अगर कोई साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकता है, ओके। पर हम अगर हिंदुस्तान में देखें तो अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ हमारे बच्चों को साइन लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, उनको स्पीच आना चाहिए, ओके। पर वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चाइल्ड, बेहतर द चाइल्ड, जो बच्चा है, क्या उसका स्पीच थेरेपी देने के बाद या लैंग्वेज थेरेपी देने के बाद क्या स्पीच डेवलप हो सकती है। वी नीड टू सी सर्टन थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग रन, वी नीड टू डेवलप हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसलिए UNCRPD की वजह से क्या हुआ है, साइन लैंग्वेज हैज़ बिकम एन ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज इट हैज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 2 एंड डेफिनेशन एज वेल एज इन आर्टिकल नंबर 21, okay। Next, Article number 23, which talks about respect for home and the family. Now in this there are four very important things, that is to eliminate discrimination against persons with disabilities in all the matters related to marriage,
family, parenthood, and relationships, including children, retain their fertility. Ensure the rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of children, or similar institution where these concepts exist in national legislation. In all the cases, the best interest of the child shall be paramount. Ensure equal rights with respect to family life, with a view to realizing these rights and to prevent concealment, abandonment, neglect, segregation of children with disabilities. Where the immediate family is unable to care for a child with disabilities, undertake every effort to provide alternative care within the wider family, and failing that, within the community in a family setting. अगर हम इस आर्टिकल 23 को हम देखें तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द रेस्पेक्ट फॉर होम एंड द फैमिली. ओके, यूजुअली क्या होता है, जो हियरिंग इम्पेयर बच्चे होते हैं या जो हियरिंग इम्पेयर लोग होते हैं, इफ़ दे हैव अ हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड दे आर ओके विद इट. ओके, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. और इफ़ दे हैव अ हियरिंग चिल्ड्रन दे आर ओके विद इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद इट. तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति है वो जिसके साथ भी शादी करना चाहता है, इट्स ओके. इट मतलब यू कैन नॉट से जस्ट बिकॉज यू आर अ हियरिंग इम्पेयर्ड तो यू शुड गेट मैरिड टू अ विद अ पर्सन हु इज़ नॉन इम्पेयर्ड. जबकि हमें ये देखना चाहिए कि अगर वो हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति है, वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करता है और आप उसकी शादी उस व्यक्ति से करते हैं जो ओरल है, जो स्पीच से बात करता है, हाउ विल दे कम्युनिकेट? दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ओके, आई हैव सीन many of my students itself, those who are hearing impaired, because of the family pressure or because of the family wanted, especially a girl child, कि she is hearing impaired, she is deaf, पर हम उसकी शादी ऐसी जगह करेंगे जो एक नॉन इम्पेयर्ड हो और जिसका मतलब स्पीच बराबर है, सब कुछ बराबर. बट आगे जाके इट इज़ लाइक देयर इज़ अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, बिकॉज वाइफ इज़ कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग टू अ साइन लैंग्वेज एंड हस्बैंड इज़ कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग टू स्पीच. आगे जाके प्रॉब्लम्स है. ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए उनके फीलिंग्स की. what do they want, and whatever they want they have their own choice to decide, okay, this is right for me or this is wrong for me. okay, like हम अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हाँ ये सारे चॉइसेस हैं और हमारे लिए ये सही है या ये गलत है. तो उसी तरीके से एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा या एक डिसेबल्ड व्यक्ति को भी वो राइट है कि वो खुद डिसाइड करे कि हाँ दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट article number 24, which talks about the education. Education ensures an inclusive education system at all the levels: tertiary education, vocational training, adult education, and lifelong learning. It also reiterates that children with disabilities are not excluded from free and compulsory primary education or from secondary education on the basis of disability. All children with disability must have access to an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live. When we see this article number 24, which talks about an education, जैसे मैं पहले से ही कह रही हूँ, it's a free and compulsory primary education. okay, primary education तक तो बच्चों को मिलना ही मिलना चाहिए. like if we see the Right to Education Act, it also talks about the free and compulsory primary education. okay, primary education is a base, it has to be there. okay, again education को आप किसी बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते हो आप एडमिशन के लिए. द सेम थिंग इज़ देयर इन राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑल्सो. यू कैन नॉट डिनाई अ पर्सन फ्रॉम एजुकेशन. ओके, जैसे मैं पहले से कह रही हूँ कि इफ़ माई चाइल्ड इज़ अ स्पेशल चाइल्ड और मुझे लगता है कि हाँ उस बच्चे में स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, उसका लिटरेसी डेवलपमेंट हो चुका है और मुझे इस बच्चे को इंक्लूसिव सेटअप में डालना है या इंटीग्रेटेड सेटअप में डालना है, तो वो जो इंटीग्रेटेड सेटअप या जो इंक्लूसिव सेटअप का जो प्रिंसिपल है या जो अथॉरिटी है, ही कैन नॉट से नो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी. मेरे बच्चे का वो हक है, एजुकेशन उसका हक है, तो उसको एजुकेशन मिलना ही मिलना चाहिए. एंड इफ वी सी अ PWD एक्ट ऑल्सो और whatever the amendments has been done in the PWD act or a right to education act or whatever amendments is going on in right to education act, we see all these things are there. okay, next article number 25, which talks about the health, promoting early identification and intervention as appropriate, provision of health insurance and life insurance where such insurance is permitted by national law, the primary healthcare centers, the community health initiatives, health services as close as possible to people's own communities, including in rural areas, ensuring coverage of persons with disabilities with regard to sexual and reproductive health, clear and stronger links between national health and disability policies, national rubella campaign,
Article number 27, which talks about the work and the employment, affirmative reservation in public and private institution for equal work and employment opportunities. Article 25 if we see, which talks about the health. Okay, now अगर हमारे देश में, अगर हमारे कानून में लिखा गया है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, लाइक जो भी हाई रिस्क बेबीज़ हैं उनका स्क्रीनिंग हॉस्पिटल सेटअप में ही होना चाहिए. एज सुन एज अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, आप जो हाई रिस्क बेबीज़ हैं आप उसको स्क्रीन कर दो, एंड देन अगर हमें तभी पता चले कि हाँ उस बच्चे में डिसेबिलिटी है, आपका इंटरवेंशन तब शुरू होगा. एंड द चाइल्ड will, after giving a therapy, after having an educational program, will come near to the or near or par to the normals. Okay, so called normals और a नॉन इम्पेयर. ओके, तो जो अर्ली इंटरवेंशन है, आइडेंटिफिकेशन है, जो हेल्थ केयर है, लाइक रूबेला है. ओके, तो ये सारी चीज़ों का उल्लेख एक कानून में होना ज़रूरी है. अगर रूबेला कैंपेन करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, लाइक व्हाट आई एम ऑलवेज फोकसिंग ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, बिकॉज जो प्रोग्रेस आप एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवीन बच्चों में देखते हो वो आप लेट इंटरवीन और लेट आइडेंटिफाइड बच्चों में नहीं देखते हो. उन प्रोग्रेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. ओके, एक अर्ली आइडेंटिफाइड बच्चा खुद पहले स्वीकार लेता है कि या आई हैव अ डिसेबिलिटी, आई एम यूजिंग हियरिंग एड, तो इट इज़ नॉर्मल फॉर द चाइल्ड. ओके, लाइक वो उठेगा सुबह, वो खुद ब खुद हियरिंग एड लगाएगा एक अर्ली आइडेंटिफाइड चाइल्ड, बिकॉज ही नोज ओके इफ आई एम नॉट यूजिंग अ हियरिंग एड आई एम नॉट एबल टू हियर, आई एम नॉट एबल टू लिसन. एक लेट इंटरवीन जो बच्चा होता है, लाइक 15-16 साल के बाद अगर आपको पता चलता है कि हाँ बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है या हियरिंग लॉस है, उस बच्चे में पहले तो खुद में एक्सेप्टेंस आना कि आई एम अ डिसेबल्ड, आई हैव टू वेयर हियरिंग एड, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट. इट टेक्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ओके, तो जो भी हाई रिस्क बेबीज़ हैं जिनका जो स्क्रीनिंग होता है वो हमें हॉस्पिटल सेटअप में ही पूरा करना चाहिए. पर ये सारी चीज़ों का उल्लेख लॉ में होना ज़रूरी है, तब जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन सही रूप से हो सकता है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट, Article number 28, which talks about adequate standard of living and social protection. It talks about ensure adequate food, clothing and housing, impact on current rural and urban developmental policies. Article number 30, which talks about participation in cultural life, recreation, leisure and sport. All public and private leisure, recreational and sport opportunities to have a clear guidelines for being inclusive. Sorry. Opportunities for competitive sport and games platform in this line with state, zonal and national games. For example, like earlier we used to have Olympics, now we have got a special Olympics. जैसे मैं स्पोर्ट्स की बात करती हूँ, जो आप अगर कंपटीशन रखते हैं एक नॉन इम्पेयर्ड व्यक्ति के लिए, वही सेम कंपटीशन आप आपके डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए नहीं रख सकते. ठीक है, अगर आपको क्रिकेट गेम रखना है एक डेफ बच्चों के लिए, तो क्रिकेट इज़ ओके फॉर द डेफ, यू नो, ही कैन सी बैट, ही कैन सी बॉल, ही नो वेयर इज़ बॉल गोइंग ऑन. ओके, बट एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, उसके साथ आप क्रिकेट खोलोगे तो बॉल शुड बी अ नॉइज़ मेकिंग बॉल. ओके, सो दैट ही अंडरस्टैंड कि बॉल कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है. तो जो भी आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपके स्पोर्ट्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, वो सब बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट अकॉर्डिंग होना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर कोई हियरिंग इम्पेयर व्यक्ति है, उसको सिनेमा हॉल में मूवी देखनी है, तो ही कांट हियर, फाइन, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम सेंटेंसेस रोलिंग डाउन और देयर शुड बी समथिंग स्क्रीन में टेक्स्ट होना चाहिए जिसके द्वारा बच्चे को ये समझ सके कि यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग. ओके, द टेक्स्ट मैसेज इट हैज़ टू बी देयर. नेक्स्ट, Article number 31, which talks about statistics and data collection, which includes severe disabilities also. Article number 32, which talks about international cooperation involving international regional NGOs, especially in technical expertise and capacity building in the areas of autism and multiple disabilities. Sorry. Article number 33, which talks about the national implementation and monitoring, highlights the need to engage civil society, in particular persons with disabilities and the representative organization in the monitoring process. Now what happened is, UNCRPD तो चलो पेपर में आपने लिखा, आपने उसको साइन भी कर दिया, इंडिया के जो लोग गए होंगे या अलग अलग देशों के जो लोग गए होंगे, रिप्रेजेंटेटिव गए होंगे, उन्होंने साइन तो कर दिया, पर उसका मॉनिटरिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना बहुत ज़रूरी है. और ये सब बराबर से कब होगा या सही तरीके से इम्प्लीमेंट कब होगा, जब एक हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ व्यक्ति हैं वो खुद वो डिसीजन मेकिंग में आए, वो खुद मॉनिटरिंग करें कि हाँ ये हो रहा है या ये नहीं हो रहा है. तो दे शुड बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट,
जब आप पॉपुलेशन सर्वे करते हैं, एनएसएस हो या सेंसस हो, उसमें भी आपको डिसेबिलिटी वाइज आपको करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना चाहिए। तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ, हियरिंग इम्पेयरमेंट की पॉपुलेशन इतनी है, विजुअल इम्पेयरमेंट की इतनी है, विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्लाइंड की कितनी है, विजुअल इम्पेयरमेंट की कितनी है, ओके, ऑटिज्म की कितनी है, सेरेब्रल पैल्सी की कितनी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी कितनी है। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स हमें आगे रिसर्च में काम में आता है, एड्स एंड अप्लायंसेस में काम में आता है, जब आप पॉलिसीज़ बनाते हो उसमें काम में आता है। पर अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है, अगर इट इज़ नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, अगर कोई चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो, तो हम उस चीज़ का हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। लाइक स्कीम्स में, कंसेशंस में ये सारी चीज़ों का उल्लेख फिर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट what I am talking about is when we talk about multiple disabilities, when we talk about cerebral palsy or autism, जो UNCRPD ने कहा है कि NGOs and other institutes and international institutes should come together, जो उनके एक्सपर्टीज़ हैं, जो उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे या उनके जो रिसर्चर्स होंगे, उन सबको इकट्ठा होके कोई एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, ओके, आई हैव दिस थिंग्स, बट मुझे ऑटिज़म के बच्चों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन डेवलप करना चाहिए वो नहीं पता, तो उसके लिए मुझे हेल्प कहाँ से मिल सकती है, कौन सा NGO हेल्प कर सकता है, कौन सा गवर्नमेंट हेल्प कर सकता है, या कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प कर सकता है। तो ये UNCRPD एक ऐसा कन्वेंशन है जो इन सब को मिलाकर कोऑपरेशन के साथ, कि जिसके द्वारा हम बच्चों की स्किल्स डेवलप कर सकें और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का आगे प्रमोट या प्रोटेक्ट कर सके राइट्स के बारे में। नेक्स्ट, now when we talk about the rights in the convention, I have already spoken about it, is the rights in the convention ranges from civil rights, political rights, legal rights, right to non-discrimination and equality. We'll see that thing is like Article 5, which talks about the equality before the law without discrimination. Article 10 and 14 talks about the right to life, liberty and security of the person. Article 12 talks about equal recognition before the law and legal capacity. Article 15 talks about freedom from torture. Article 17 talks about right to respect, physical and mental integrity. Article 18 talks about freedom of movement and nationality. Article number 25 talks about right to health. Article 24 talks about right to education. Article 28 talks about the right to adequate standard of living. Article 29 talks about right to participate in political and public life. And Article 30 talks about right to participation in cultural life. सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि UNCRPD हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलग अलग आर्टिकल्स बात करते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के बारे में, हाउ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस बाय यूजिंग सोशल मीडिया एंड ऑल। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन एज वेल एज ओपिनियन के बारे में, एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन के बारे में, फ्रॉम एनीवेयर we can get or the parents of the people with disability can get information as they want. उसके बाद how the family as well as the society and of course the person with disability will gain respect. किस तरह से वो respect को gain कर सकेगा, ये भी UNCRPD में बताया गया है. And of course education के बारे में बताया गया है कि free and compulsory education जो है वो उसको प्रोवाइड की जा सकती है. देन हेल्थ के बारे में आ जाता है. हेल्थ में आ जाता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन. अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि जितनी जल्दी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, जितनी जल्दी प्रॉब्लम को जाना जाएगा, उतनी ही जल्दी हम कोई प्रोग्राम उसके लिए प्लान कर पाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं. एंड वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है व्हाट टाइप ऑफ वर्क, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है तो किस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो फॉर्म होना चाहिए. देन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको किस तरह से हम एडिक्वेट बना सकते हैं, उसको किस तरह से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं. देन ऑफ कोर्स अबाउट द स्टैटिस्टिक एज वेल एज द डेटा कलेक्शन की अगर अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी प्रेजेंट है एक कंट्री में, सो हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी. अगर हम अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को लेके डेटा कलेक्ट करें तो हमें पता चलेगा कि कितने % लोगों को डिसेबिलिटी है और हमको किस तरह से प्रोग्राम प्लानिंग करनी है ग्लोबली. देन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इफ़ वी आर सीकिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अगर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं सो हमको वी हैव टू रूल आउट कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली वर्क कर रही हैं डिसेबिलिटी के बारे में,
वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमको टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है या फिर अगर हमें टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम किस तरह से ले सकते हैं इंटरनेशनली और ग्लोबली, वी कैन से। देन ऑफ कोर्स द नेशनल इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग, अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री में, सो किस तरह से उसका जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाए और किस तरह से उसको मॉनिटर किया जाएगा कि इसके इंक्लूडिंग जितनी